Hello everyone, welcome to my channel Smart Science by Raj. So today we are going to start chapter 18 wastewater story. Look at the water left in the bucket after washing clothes. Is it clean? Can you drink it? Your answer will be no. You can see that the water left the bucket is not clean and also contains lather of soap. The dirty water that goes down the sinks, toilets, bathroom, kitchen into drain is called wastewater. The General Assembly of United Nations declared the period 2005 to 2015 as the International Decade of World Water. World Water Day is celebrated on 22 March. Sewage. Wastewater from various sources that flows down the drains is called sewage. A channel of small and big pipes called sewer carrying sewage away from our houses is called sewerage. As most of the sewers are underground, so entrance is necessary to fix faulty pipes. Manholes are built for this purpose. A manhole is built at the junction of two or more sewers or at a point where there is change in direction. Harmful effects of untreated sewage. Untreated sewage can pollute ground and surface water. Sewage from leaking pipes can sometimes enter the drinking water pipes and pollute it. The rapid increase or accumulation of algae in an aquatic system is called algal bloom. Wastewater treatment plant. Wastewater is treated in wastewater treatment plant because sewage contains solid substances which have dissolved and suspended impurities or harmful chemicals and germs. Vermicomposting. In this method, red worms are used to treat human excreta and convert it into a harmless mass is called vermicomposting. Vermicompost can be used as a manure for plants. We should throw garbage or waste into the dustbin. While walking on the road, if you do not find dustbin to throw the waste, it is advisable to carry it with you to your home and dispose it properly. Now in हिंदी, कभी आपने कपड़े धोने के बाद उस पानी को देखा है? क्या वो साफ होता है? क्या हम उसे पी सकते हैं? आपका आंसर होगा नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि उस पानी के अंदर बहुत ज़्यादा लेदर ऑफ सोप है। लेदर ऑफ सोप यानी जो हमारा जो सोप के अंदर से जो बबल्स होते हैं उसे लेदर बोलते हैं। The dirty water that goes down the sinks, toilet, bathroom, kitchen is into drains is called wastewater. ऐसा गंदा पानी जो कि सिंक्स, टॉयलेट्स, बाथरूम या फिर किचन से होकर के ड्रेन्स में जाता हो वो वेस्ट वाटर कहलाता है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 2005 से लेकर 2015 तक इंटरनेशनल डिकेड ऑफ वाटर का डिक्लेयर करा था। वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। सीवेज. वेस्ट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज दैट फ्लोज डाउन द ड्रेन्स इज कॉल्ड सीवेज. वेस्ट वाटर जो कि ड्रेन से फ्लोज डाउन करके जाता हो वह सीवेज कहलाता है। एक ऐसा चैनल जिसके अंदर स्मॉल पाइप्स भी हो और बिग पाइप्स भी हो वह सीवर कहलाता है। और जो हमारे घर से सीवेज को लेकर के जाता है वह सीवरेज कहलाता है। जैसा कि बहुत सारे सीवर्स जो हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं तो उनके अंदर कभी फॉल्ट हो जाए या फिर फॉल्टी तो उनके अंदर एंट्रेंस भी ज़रूरी है। तो फिर फॉल्टी पाइप्स को हम फिक्स करने के लिए मैन होल्स बिल्ड करते हैं। अ मैन होल is built at the junction of two or more sewers or at a point where there is change in direction. मैनहोल तभी बनाया जाता है जहाँ पर दो या फिर दो से ज़्यादा सीवर्स मिलते हो या फिर डायरेक्शन के अंदर चेंज हो। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ और अनट्रीटेड सीवेज. जो हमारा अनट्रीटेड सीवेज है वो ग्राउंड और सरफेस वाटर दोनों को पोल्यूट कर सकता है। सीवेज कभी कभार लीकिंग पाइप्स के अंदर से जो सीवेज जा रहा होता है वो कभी कभार हमारे ड्रिंकिंग पाइप्स के अंदर जाकर के भी पॉल्यूशन फैला सकता है। जब बहुत ही ज़्यादा किसी एक्वेटिक सिस्टम के अंदर बहुत ही ज़्यादा एल्गी मतलब ग्रो करना स्टार्ट हो जाए तो वह एल्गल ब्लूम कहलाता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. वेस्ट वाटर जो है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ट्रीट किया जाता है क्योंकि सीवेज के अंदर सॉलिड सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनके अंदर इम्प्योरिटीज, हार्मफुल केमिकल्स और जर्म्स होते हैं, इसलिए वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ट्रीट किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग.
इस मेथड के अंदर हमारे वेस्ट के अंदर इस मेथड के अंदर हम हमारे ह्यूमन वेस्ट के अंदर उनको छोड़ दिया जाता है, जिससे वो एक मैन्योर बनाते हैं जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वी शुड थ्रो गार्बेज और वेस्ट इनटू द डस्टबिन। जैसा कि आपको पता है कि हमें हमेशा ही गार्बेज हो, हमें उन्हें डस्टबिन में फेंकना चाहिए। और हम कभी रोड पे चल रहे हैं और हमें डस्टबिन नहीं मिले तो हमें हमारे साथ उसे हमारे घर तक लेके जाना चाहिए और अच्छे से डिस्पोज कर देना चाहिए, या फिर हमें रास्ते में कहीं पे और अगर डस्टबिन मिल जाता है तो उसके अंदर भी डिस्पोज कर सकते हैं। If you like the video, so please subscribe my channel. Thanks for watching.